renowned, हम कहेंगे, jump-in dairy farmer here, Mr. Moeed Nazki. He's from here, Srinagar only. He will brief us about his success as a dairy entrepreneur. His success, what were his basics and where from he started his dairy venture. He'll brief us about that uh, dairy venture, dairy sector. Thank you. Good afternoon to all. Uh, I would not say success completely, but it's a journey, and with time we have learned that with hard work and perseverance, we have been able to achieve a lot. For instance, we started with 16 cattle, and now currently we're having 35 to 40 cattle heads. And let's begin. I won't call myself a champion dairy farmer. I'm still learning. I'm in an incipient stage, which is when you नादान है कोई अभी 1 साल हुआ है हमारे डेयरी फार्म को बाली हो so it's an honor to be here first of all and the चीज ये जो लड़के शुनी ये करनी it's for women only so it's a wonderful thing because जो डेयरी सेक्टर है 2007 2008 का डेटा जो कहता है कि डेयरी सेक्टर हैज बीन क्या इसको बोलते हैं हैज बीन run or has been empowered by women only. 90% of our country's women have been involved in this sector. क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी हार्ड वर्क मांगता है, काफ़ी लेबर इंटेंसिव है and it's very difficult to retain employees. So as women मैं बस इतना कह सकता हूँ कि like you can do wonders with this क्योंकि इसका कैश फ्लो काफ़ी अच्छा रहता है इसमें डिमांड बहुत है सप्लाई बहुत कम है because what people are looking for and in coming years people will be opting for better and better resources cleaner they won't look at cheaper they won't look at alternate resources they will go for better and healthier resources for themselves and for their families. Reason behind is मैं आपको अपनी observation बोलता हूँ. Most of our clients they are either having small babies or children, adolescents, or they are having some health issues. Most of our clients are either carcinogenics. मैं सब नहीं बोलूँगा. At least 10 to 15% of our clients are carcinogenics. And ये मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है मतलब इससे मैं क्या डिराइव करता हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ देयर लाइफ दे हैव कम टू अंडरस्टैंड कि इट डजंट मैटर कि कॉस्ट क्या होगा किसी चीज़ का बट व्हाट मैटर्स इज कि वो हेल्दी है वो उनको हेल्दी लाइफस्टाइल दे पाएगा क्योंकि हेल्थ इज व्हाट काउंट्स एट द एंड ऑफ द डे सो जो ये वेंचर्स है ऑर्गेनिक मशरूम में जाए पोल्ट्री में जाए until unless your intentions are clear you are going to make a lot of money है इसमें but first and foremost is कि आपके intentions आपके जो उर्दू में क्या आपके जो नीयत है आपकी हाँ. वो अगर साफ होगी दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं है जो जिसमें आपको कामयाबी ना मिले मैं आपको ऐसे बोलता हूँ मैंने कभी गाय देखी ही नहीं थी मैंने कभी गाय पाली नहीं थी मैंने अपना बैकग्राउंड आप लोग को नहीं दिया आई वॉज ट्रेन्ड एज एन इंजीनियर मेरा मास्टर्स था इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में देन आई वेंट फॉर माई PhD दैट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल उनके अंडर में काम कर रहा था आई वॉज वर्किंग फॉर सस्टेनेबल एयरपोर्ट पेमेंट्स बट खैर वाई आई लेफ्ट दैट वाई आई केम हेयर दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट इतनी सी बात कहूँगा it all started with an intention it all started by reading literature by reading books IPCC की जो reports आती थी I read them and one of the major issues that we are facing currently is food security is one of the concerns जो आप global warming and climate change सुन रहे होंगे कितनों को पता है कि food security पे क्या impact पड़ता है उस Does anybody मतलब फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज का कोई कोरिलेशन आप लोगों के जहन में आ रहा है
मतलब आप come on, you are here because you want to become entrepreneurs. And entrepreneur enthusiastic होना चाहिए. You should be passionate. You seem to be passionate क्योंकि आप यहाँ पे हैं. But let's begin with some interaction. Do you have anybody? Can anybody tell me मतलब correlation क्या है food security and climate change? अगर हमारे जो environment है, अगर हमारा climate harsh होता जा रहा है दिन ब दिन, हमारा जो productivity वो decrease हो जाएगी, हमारा crop yield कम हो जाएगा, हमारा जो है मतलब लाइफ स्टॉक है वो सफ़र करेगा. सो इसमें डेयरी क्यों चूज किया? मतलब मैं अपना पर्सनल बोलूँगा बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस लैंड. मतलब ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत लैंड हो पहले से, बिकॉज यू कैन रेंट इट. ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई ऑब्स्टिकल या हर्डल बन जाए आपके रास्ते में कि मेरे पास लैंड नहीं है तो मैं घास कहाँ से लाऊंगा. देयर आर अदर रिसोर्सेज. पहली बात होती है नीयत. वंस यू हैव सेट अप इन योर माइंड कि मुझे ये करना है, यू हैव सेट अप योर गोल्स, देन दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है जो उस काम को आपके पास आने से रोक सके. इट्स अ टू वे प्रोसेस. बट पहली बात यही है कि योर इंटेंशन. सो इस एरिया में यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने बोला आपको कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो होता है, मतलब फूड सिक्योरिटी हमारी कैसे इम्पैक्ट करती है. और डेयरी एक सेक्टर है कि इट एनकम्पासेस ऑल द फेसेट्स ऑफ एग्रीकल्चर टू सम एक्सटेंट. वेदर वो फ्रूट वेस्टेज हो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो. एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं. वेदर आपको सो कब करना है, हार्वेस्ट कब करना है, एग्रोनॉमी भी आपको आनी चाहिए. वेदर जो इस वक्त मतलब इस टाइम पे कि आपको कौन सा प्लांट आप निकालोगे, कौन सा हार्वेस्ट करोगे, कौन सा सो करोगे. दिसंबर का टाइम है, सो यू हैव टू थिंक वाइजली अकॉर्डिंगली. सो लाइकवाइज अगेन लोगों तक साफ साफ खाना पीना पहुंचाएं. मिल्क इज वन ऑफ द थिंग्स जो सबसे ज्यादा एडल्टर्ड है इस वक्त. एंड पीपल लिटरली जस्ट मतलब वांट टू have the taste of pure milk जो नहीं मिल रहा है इस टाइम. So if you can do that, if you go ahead with that intention, so you will do wonders. Next is milk production का scope हमारी स्टेट में अभी बहुत है. पंजाब हरियाणा में they have cows, high yielding cows जो यहाँ पे अभी नहीं है. So यहाँ पे milk deficit हमें रहता है. We are importing huge amounts of milk products from outside. स्वास्थ्य घी हम वर्का का या अमूल का वही यूज करते हैं. यहाँ पे लोकल हमारे पास अपना कोई ब्रांड है नहीं. लाइक कुछ पनीर हो गया या बाकी चीजें हो गई. सो नेक्स्ट इज जीनोमिक्स. जीनोमिक्स लाइक हमारे पास अच्छी ब्रीड यहाँ पे अभी पूरी तरह दस्तयाब नहीं है. सो देयर इज अ ह्यूज मार्केट इन दैट एज वेल. एंड फाइनली मार्केटिंग. दूध की आपको मार्केटिंग यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगी, प्रॉपर मार्केटिंग. मतलब करंटली मैं अभी बोलूँगा ये जो पीपीटी बनाई है ये मैंने आज मतलब दूध डिलीवर करते करते बनाई हमारी. मतलब डिलीवरी बॉय वो छुट्टी में था इस महीने. सो आई एम डिलीवरिंग माय मिल्क ऑन माय ओन. सो मार्केटिंग में व्हेन आई मतलब अब जब फील्ड में निकला, व्हेन आई मेट पीपल, मार्केटिंग इज अ चैलेंज हियर बिकॉज पीपल आर स्टिल going through those dogmas कहूँगा मैं उनको. लाइक मुझे गुरु वनान कि यह शुभ बोले मुझे तो दो दिनों इस आब दो दास खबर क्या इमरान लावश दावा करावा. सो तिम चीज तिम स्टिग्मास क्या हवन वो it's very difficult to मतलब to get into this market जो यहाँ का mindset है. but still it's evolving right now. नेक्स्ट जो मैं आपको क्लाइमेट चेंज का बोल रहा था, जो डेयरी सेक्टर है वो आपका लैंड भी कवर करता है, बायोडाइवर्सिटी मतलब सॉइल का वर्मी कंपोस्ट बनाएगा वो भी कवर करता है. फिर जो आपके क्रॉप्स है कि कैसे इसको
साइकिल अप कर मतलब साइकिल चेंज कर सकते हो आप। फिर आपका जो लॉस एंड वेस्ट होता है, लॉस एंड वेस्ट थोड़ा वास्ट एरिया है इसमें। लाइक अब इनकी जो फीड या फोडर उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो वो भी इसमें आता है। प्लस जो एग्रीकल्चर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आप इसमें कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। स्ट्रॉ को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हे को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, फ्रूट वेस्ट को कैसे यूटिलाइज, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। then comes food security, availability, access, the utilization, stability, कि आप अपने मिल्क को यूटिलाइज कैसे, मतलब यूटिलिटी ऑफ समथिंग इज एक्चुअली कॉल्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी और फाइनेंसेस में डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर प्रोडक्ट, आप कैसे उसको बेच पा रहे हैं। आप 50 रुपए में, 40 रुपए में, 60 रुपीज में, 70 रुपीज में कितने का बेच पा रहे हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी। और उसमें आपको देखना है कि मैं क्वालिटी कैसे मेंटेन रख सकता हूँ, क्या क्या चीजें मुझे चाहिए होती। सोशल एक इकोनॉमिक बात है ना, अगर हम जैसे जी सिंपल देखेंगे मिल्क का, एब्सोल्यूट मिल्क का, तो जैसे दिल्ली में हम जाते हैं तो वहाँ मदर डेयरी का ले लेते जी हैं, जी तो दैट कॉस्ट अराउंड 80 और 80 rupees. 90 रुपीज भी उनका वो लीटर मिल जाता जी, है। जी। वो डिमांड इतनी ज्यादा है कि मतलब पूरे बिक दिन उनका जाता है। चलता रहता है जी, राउंड द जी। क्लॉक वो। तो दूसरा बिल्कुल यही पैकेज मिल्क आता है 50 और 55 रुपीज, जी सर। लेकिन उसकी डिमांड थोड़ी ज्यादा रहती है वहाँ पे। तो जी। इतना क्यों है इसमें कॉस्ट डिफरेंस की व्हेन मिल्क एसएनएफ एंड दूसरा क्या इसका रहता है फैट बेसिकली कंटेंट, इट इज ऑलमोस्ट जो सेम। मैंने इनिशियली सर कहा, आप तब यहाँ पे नहीं थे। पीपल आर गोइंग फॉर हेल्दियर प्रोडक्ट्स, मतलब उनको साफ साफ आफ्टर पेंडेमिक इट बिकेम अ ग्लोबल फिनोमेना, मतलब पीपल आर कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स। हमें लाइक दे वांट क्लीनर फूड, ऑर्गेनिक थे, मतलब वैसी वैसी चीजें। बेसिकली ऑर्गेनिक इज दैट दे आर गेटिंग अ प्रॉपर Quality न्यूट्रिशियस wise. न्यूट्रिशनल Exactly. फूड। सो बात ये है, जहाँ से मैंने गाय अपनी खरीदी थी वो फार्म 100 रुपए लीटर बेच रहा था वहीं पे, फार्म फार्म पे, एंड कस्टमर्स यूज्ड टू कम देयर। रीजन बीइंग पीपल आर मोर कॉशियस, मतलब अभी भी वहाँ पोल्यूशन इतना ज्यादा है दिल्ली में, यू कांट गो आउटसाइड। सो राइट नाउ दे नो, मतलब उनको कदर आ चुकी है। दैट्स व्हाई आई सेड मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स जो हैं कि हम 55 में लीटर बेच रहे हैं, इट्स चीपर, हम बेच रहे हैं। मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स आर इधर दे हैव यंग चिल्ड्रन जिनको डॉक्टर ने दूध बंद किया था, नाउ दे हैव स्टार्टेड अगेन जब से उनको हमने दिया है। एंड जो मतलब कार्स, मतलब उनका सीए चल रहा है या कुछ चल रहा है, मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स, बिकॉज उनको हेल्थ की कदर आ चुकी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, समटाइम्स वी हैव मतलब लेस सप्लाई ऑफ मिल्क, मतलब प्रोडक्शन कम होता है तो हमें कम करना, कर्टेल करना पड़ता है थोड़ा। सो आई गेट कॉल्स कि आई हैव दिस प्रॉब्लम, सो प्लीज काइंडली डिलीवर मिल्क फॉर मी। बस छुस हेकान नेबरुम बाकी चेक के। सो दैट डिफरेंस इज दी, that's what I want to People convey. are becoming more More aware, cautious. more aware about these about things. the yes, nutrition. जी, Milk is a complete food. it's You a can say complete, milk is a- exactly it's a- ma'am. So जो ये market है, it's a growing market. Within next 5 to 6 years, you will see a complete transformation. People will be wanting proper nutritional diet, मतलब जहाँ से उनको, और trust. Trust is most important. Like I said in the beginning, your intentions will make your way. That's the most मतलब important. इस सेक्टर में ऐसा कभी नहीं होगा कि डिमांड विल बी लेस एंड सप्लाई विल बी No मोर, sir, इट इज नेवर, no sir. दिस इज द मैन। Like That is मैं why this आपको is बोल रहा हूँ the highly developing sector. exactly man. But the thing is you have to evolve continuously. This sector is evolving. Like पुलवामा में इन्होंने अभी start किया है milk collection center. That's a huge milk collection center. So they are trying to organize it in a big way there. यहाँ पे वैसा नहीं है. It's local vendors even ज़्यादातर ये करा, but they are not अदरवाइज doing. गांधरबल They इज have आल्सो their, गुड इन मिल्क industrial, प्रोडक्शन। जी। गांधरबल भी है गुड इन मिल्क जी, प्रोडक्शन, जी, स्पेशली sir. तुलमुला एरिया। Exactly sir. And it's not about the milk only, it's about the value addition of the milk also. Exactly, That is ma'am. also now वही मैं बोल रहा हूँ, it's an evolving हाँ, sector. exactly. And plus जो again it went out, जो complete मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब जो IPCC का, मतलब this is a screenshot of one of the chapters of IPCC that was published in Springer. So
उसमें they are showing that these are the areas of focus when we are talking about food security. So dairy sector जो है वो सारी जो ये factors है इनको encompass करता है. For instance, soil biodiversity, carbon storage, इसमें आपका वर्मी कंपोस्ट आ जाता है या बायोगैस प्लांट्स आ जाते हैं. ग्रीन एनर्जी सेक्टर. देन सोशो इकोनॉमिक या डेमोग्राफिक्स में अगर हम देखें, डेमोग्राफिक्स में वुमेन folk is more involved in this sector. 90% of women are getting livelihood from dairy sector. So सोशो इकोनॉमी में हम देखें तो इस साल I had मतलब currently वहाँ we have 4 employees at our farm and 50 to 60 हमें बाहर के एम्प्लॉय करने पड़े. तो मैन डेज अगर देखूँ मैं 200-300 मैन डेज एक्स्ट्रा देने पड़े मुझे अपार्ट फ्रॉम माई 4 एम्प्लॉयज. सो इट जनरेट्स दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल पीपल. एंड फूड सिक्योरिटी में अगेन द मेन मतलब जो इसका मोटिव है इसका डेयरी सेक्टर का, दैट मिल्क शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी. वो आपको प्रोड्यूस करना आना चाहिए एंड फॉर दैट यू हैव टू रीड एंड रीड. जेसन हॉन्ग का भी रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था एंड ही वाज आस्क्ड वेदर यू वुड डू, वो एनवीडिया के फाउंडर थे, he was asked whether you would do Nvidia again or not. He said, if I was in my sane mindset, I won't do it. Because entrepreneurship demands a lot of work. Hard work नहीं बोलूँगा मैं, simple work बोलूँगा. इसमें गधे की तरह काम करना पड़ता है. But it's rewarding at the same time, at the end of the day. Like you have to work 16 to 18 hours. रोज नहीं बोलूँगा, but sometimes you have to. But the thing is, आप अपने लिए काम कर रहे हो. You're working for yourself. So that's why I was asking for some interaction. क्योंकि अगर आप entrepreneur बनना चाहते हैं, you have to just come out of yourself. Just come out of that shell. You have to start asking questions. You have to start reading books. Because book is something that a person has written down accounts of hundreds or thousands of people that's compiled in one book. और जब आप वो एक बुक पढ़ते हैं, आप हजारों लोगों का आइडिया, हजारों लोगों का एक्सपीरियंस पढ़ते हैं उस वक्त. So books are very important. So our objectives are like precision diet formulation was for the first 3 years, which for some extent we have been able to cover that, because to precisely formulate the diet we required certain devices. We currently don't have them yet, but using nutrition requirement for cattle and their software we have been able to manage it to some extent. Then comes genomics, that's also kept for next 3 years, and active health monitoring systems. This is going to be a health monitoring system for cows that I will explain further in the upcoming slides. And the final is green energy, and that we have kept for next 15 years. So we are moving with a plan. So basically we have set some goals. We are not just opening a dairy farm and just going around selling milk or anything, but we have certain objectives and goals kept in mind. This is the NRC software. NRC is nutrition requirement for cattle. It was published by USIDA, I believe. Department of Agriculture in India. Exactly, so it's 2001 edition, so they had made this software. The problem with utilizing this software for your cattle is that the feed or the inputs given in this software are based on the data that was provided in US. It's based on that. But for us, what we are doing, we are using this software as a baseline. We are formulating diet in this software, and then by visualizing or with empirical approach, we are then just curtailing or increasing the feed. Usually their feed quality is obviously better
So we have to keep that in mind. So next is we were having last year we were having some issues with the conception. गाँव असल लगा कि so तम खतर क्या कर इसे we opted for fish meal. Fish meal कैसे हम बनाते थे? We अब उस गसान छसबल से लेके आता था मैं ये फिश का जो मील होता था वेस्टेज, तो इसको हम पहले बॉईल करते थे, फिर सन ड्राई करते थे, then we used to microwave it for And they used to provide it free of cost. free of cost, Offense. and then we used to grind it in a mixer और पाउडर बना के फिर उनको दे देते थे, and at the end of the day we had 100% conception rate. मैं खाली फिश मील से नहीं बोलूँगा ये हुआ, बट इट इम्प्रूव्ड देयर एस्ट्रस साइकिल्स, एंड इसमें उस चीज़ में हमें और एक चीज़ ने मदद की. वी हैड अ वेरी गुड वेटनरी सर्जन पोस्टेड देयर, शी वाज एन OBGYN स्पेशलिस्ट, so उस चीज़ में हम काफ़ी लकी रहे. Dr. Gausia जी. So she introduced our farm to hormone therapy as well. So उससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ. So her expertise paid a lot. Right. So next for genomics, जैसे मैं बोल रहा था, we're starting a satellite heifer farm, and currently we have 20 heifers. So with 1 or 2 years, these heifers will be ready for sale. Finally, what the research is going on in the background is that mathematical modeling of precision diet formulation, जिसमें कि जो seasonal correction factor है, we're trying to work that using Fourier transformation and Laplace transforms. So ये काफी it is going in the background. Time नहीं मिलता है, but I'm still trying to do it. Sorry, estrus की spelling ठीक है. Like I said, I was making this while driving. So for estrus detection, dry matter intake and health monitoring for the cows, we want to rely on IoT devices in future, so that we could know कि हमारी गाय ठीक है, हेल्थ में है, एस्ट्रेस तो नहीं है, मतलब एस्ट्रेस हीट शवना हीट माशी गाय में, because that usually goes undetected and that's a huge loss to the farmer. So वह को तो example दे गाव कैसे लेट्स दोस मज ये करा द्रामन करा like 20,000 to 40,000 times, ऐसा ही, I don't remember the number, से 100 बार करती है. अगर हाइलाइट कोर ने तेम द्रामन तेम कोर 5 हाइलाइट ही ये लज होता है एमी डिवाइस से पाए तो क्या है कि तेम से डिड्यूस करे. So either the animal is sick, एम कोर ने द्रामन बराबर पालन किए, तब मतलब में शेमिस गावे दिन नजर. अगर द्रामन बराबर कोरन के बेसु खड़ा सोच ठीक को शायद सोच हीट बस मतलब एम से थे के आइडिया लगे. So ये मेथड इन कंप्लीटली ते आसान के, बट वी कैन वर्क ऑन देम. वार इंसान ये कोशिश करे तेली है के करे ये अक कदम तुल तेली है बा कदम. So next is final जो मैं बोल रहा था, biogas plant. Biogas plant is something really huge. It requires certain amount of expertise. अथवास थोड़ा engineering skill की ज़रूरत. Plus we have one certain problem here in our valley कि यहाँ temperature काफी drop होता है. So जो हमें thermophilic reaction चाहिए होती वो होनी possible नहीं होती. So I had a friend, he was an IIT Roorkee pass out. He has a similar setup. He is based in Pune. So they are working with these biogas plants. So we had thought of, मतलब issuing inception of a French type biogas plant. In a French type biogas plant, what happens is this biogas plant shows that you are garbage sit and then cover करना पेटिंग dome ही बना. So that gives it's to certain amount of insulation. So should temperature maintains thermal stability must थोड़ा मदद दिमाग. I know it's quite ambitious, but we have to keep certain, we have to keep our standards high. Then only we can
achieve something. At least something is better than nothing. So finally, testing. What sort of testing we do at Fuel, our one of the objectives is green energy. Ji ma'am. So This is related to that. this is very much. So this was a research aspect. मतलब research क्या हम background में अभी farm में कर रहे हैं. So if can कशर च वना गुपन रचन इशन सिर्फ गुपन रचन क्या you can do much more with it. So next is our testing methods. Testing methods में क्या आता है कि we do a visual inspection. That's a general thing. Next is AST जो हम आपकी लैब में यहाँ पे करते हैं. So ये क्या AST का मशस मदद देवा. AST अगर मेस्टाइट शुगर AST से मदद करान ये वुचन खतर कि कत एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट तो कुछ एंटीबायोटिक है कि अत इलाज कर मतलब इसके इंसान करान ब्लड टेस्ट तब नान कल्चर कर कि कत एंटीबायोटिक लगे कुछ लगने के तिथे कन गावन खतर AST सह वनान कुछ बैक्टीरिया अत दोदस मज अत कुछ एंटीबायोटिक हेको दित पत मेडिसिन जहन पान दिवान मे मेडिसिन पान न्यूट्रिशनस सह थोड़ा और योर करान मेडिसिन सह जहन करान मेडिसिन खतर ईदर आई कंटैक्ट डॉक्टर गौस या VAS या डॉक्टर शफायत है या मेडिसिन में जो है या उनको कांटेक्ट करता हूँ. सो ये तम वन ये तम डोजेज पत वन किस कैलकुलेट कर कूता अकॉर्डिंगली दिवान बे टेस्ट कर इथे कन कि मेस्टाइड्स एरोफ्लॉक्सिन तुल 10 ml ते कोर 10 ml ते करान के तम सह गाव वाता मुजरी. तो ब्या चीज इम्पोर्टेंट चीज युथी एंटीबायोटिक गाव करान तुलान तो सह दोद कना युथी सह इंसानस वाता तम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंसानस ते बढ़ान तब दो का दो डोलो 2.5 पे डोलो 6.5 फॉर इंस्टेंस आप एग्जांपल या एंटीबायोटिक्स पे हाई डोज रीजन सोन खेन साफ के अगर अख नफर 2 नफर ये सोचो कि ना पन खेन लुकन तम साफ वाता पन्ने सोसाइटी खतर ह्यूमैनिटी खतर सोसाइटी मन ग्लोबल विलेज पूरे वर्ल्ड ह्यूमैनिटी लेवल पे सोचन सरसी मखलूकस खतर कह न कह करित नीर लाइफ इज शॉर्ट 20 वरी 30 वरी अगर निमन 20-30 वरियन मज हेको कहीं कर तेल क्या फायदा. There is no point in living then. So we should keep our intentions clear. We have to work towards the betterment of humanity. That should be our first motive, and inshallah you will be golden afterwards. So next to CMT, California Mastitis Test. ये क्या simple plate आसान चोर खाना आसान या सो तो बुझमुत. तो आत्मा शेष त्रावान क्या चुना reagent एम तो तथ मन चेक गसान गावी छा मेस्टाइट्स सब क्लिनिकल मेस्टाइट्स छन पाई लगा के बाकी उस थानस मन गोड़े पाई लगा मगर उस ह्योर गुन अड्रेस में सुशन पाई लगा के सब क्लिनिकल वन करेक्ट दिस मतलब ये चीज एस फार्मस में वी आर कंटिन्यूअसली मतलब एंगेजिंग विद एक्सपर्ट्स एंड सु पस तो ते करन experts nish gets advice zaruri ratin because when you will go outside this campus at one look doctor shan pai asa ke and that is reality so field mein yahi hota hai doctor shan pai kihin dawa shu ye shu dun ye karan ti gas theek ish asti pai instant ilaj shun asa kuni cheezes everything takes time doctor dish panin kaam karan em dish panin degree karmus ke chun kormut this time 5 and 6 wari. So we must rely on experts. So finally is microbial loading. निवान जुकर hospital मतलब sample निवान गूह sample या के कुछ साथ अगर कहीं गाँव शुभ आसान कमजोर या के तमें गूह sample निवान जुकर lab मस्त तक तक वुशा के आत्मस microbial आत्मस जरासीम किताश अगर ज़्यादा ऐसे तमें हिसाब से पता इलाज करें. Finally
यथ वरियस डोडस वरियस मज हेच में अकुई चीज ह्यूमिलिटी इंटीग्रिटी पर्सिस्टेंस योता आस परसिवरेंस आस तोता है कि इंसान कहते करे फॉर इंस्टेंस अगर बह सोचो मे डिलीवरी बॉय छुट्टी पे रतस तो बह क्या कर यथ दोदस कैसे आई कुडंट ट्रस्ट एंड मतलब अ थर्ड पर्सन सो मैं उठाया और निकला रुका नहीं मतलब इसके में फादर छ वना कि अगर कुन गसुन छ बस हुन वेट गस न करन के पन्ने मंजिल कुन गस रोजन पकान एंड इफ यू विल फॉलो दिस तो यु नीरू गोड यु पैदल पकियो के दूर वातियो के न के मेल खसने so you will reach your destination much earlier than you have anticipated but you have to first of all you got to walk through the near execution is very important ideas वरना सबके पास होते हैं execution करना बहुत मुश्किल होता है next thing is this is very labor intensive and a demanding sector अत मज मतलब बस एम्प्लॉय थवान कह एम्प्लॉय तुथ आसान तम 10 दोहन काम करान तो छुट्टी करान बिकॉज इट इज लेबर इंटेंसिव मतलब करना शुगर कोट के यू हैव टू वर्क रियली हार्ड मिशन बासान यीचा आसे फिजिकल तो मेंटल तो कुन चीजस में इन्वॉल्वमेंट गसान इंसानस यीचा अत मज बिकॉज यू हैव टू कंटिन्यूअसली कैलकुलेट थिंग्स you have to मतलब तशु दोद नेरा 7 किलो आज पगार के डॉट ते नीर you have to think how to divert that surplus you have to think कि आज अगर मैं 10 खर 10 गास द्रावे ते पगार के 5 नीर बकित के हेक्सु डेफिसिट कवर कर तशु सोचन में बागस आब लागने गसन रात के so these are the challenges with it मतलब मैं छुद लकट चीज वना बे बाकी आसु तो पाई कि गाव प्रश्न तैयार you have to stand there तच खड़ा तती रोज so labor intensive है ये आप लोगों को मालूम ही होगा इसके लिए और रिस्क बहुत ज्यादा है लाइक ऐसे उस वो सफर उसमें बड़े दिलोजान से then finally तम कर लात देवार सिंह कहतान तो छोन तमिस टेंडन पद किन पता नहीं उस योर सर्जरी बैठते तमिस लाइक वूज तो उठे अनफॉर्चुनेटली सो हगन पत बचित के तमिस गो इन्फेक्शन बट द थिंग इज कि रिस्क इसमें बहुत ज्यादा है यू नेवर नो समटाइम्स कि क्या हो सकता है नेक्स्ट इज कि इसमें कैश फ्लो काफी हाई है यू आर सेंडिंग मिल्क टू द मार्केट चलो कल नहीं परसों नहीं अगले महीने आपको पैसे मिल जाएंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से मतलब है कि गाव सदी वत्सर पगा सो नेक्स्ट ईयर मतलब आफ्टर 2 years गस स्वति रेडी गाव बन खतर आई नो इट्स अ लॉन्ग टाइम अत खतर पेशेंस जरूरत बट व्हेन यू स्केल अप अगर तु 10 गाव थे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग फिर उसमें 1 साल कुछ नहीं लगता है कि अगर 10 गाँव था 10 वर्ष या वस्त्र जाए आफ्टर अ ईयर तो यासनो बे ही फर 10 या 2 वर्ष तैयार then afterwards बे आसन तिमai गाँव बे तैयार तिम आसन नए गाँव स्थित but the thing is मैनेजमेंट जब तक आपकी सही होगी आप ये कर पाए आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फायदा उठा पाओगे फाइनली इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग बिजनेस नो डाउट ये आपको कभी सोने नहीं देगा बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ रिवॉर्डिंग बिजनेस बिकॉज इट एंड्स अप इन एन एसेट क्रिएशन slowly but it goes to that level. Any questions? अच्छा मैं ही पूछता हूँ किसी के पास गाय है घर पे आपको मतलब कितनी गाय है आप एक गाय पे मतलब आपको क्या लगता है आप कितना फायदा उठाते हैं सर उसका खर्चे छोड़ के कुछ बच भी जाता मतलब ठीक अमाउंट बचता है कैसे आखिर गाव छु तुझ छु नेबर हेकान त्रेत
सो छ ग्रेजिंग हेकान गसित आराम सान गो गासु खर्च छ तोय बचा तो छ पेवान सिर्फ कोश अन ज्यादा को ज्यादा खे 4 किलो 8 किलो खे गाव कोश अगर सो वारिया ज्यादा आस दिवान गो मतलब तो छ कोश बोर गसु तोय 2 दोन खर्च वो 15 बोरी गसा रेतस खर्च 500 रुपये अगर बोर छ ज्यादा को ज्यादा छु तोय 5-15 हो गए 7.5 बस तो तुई खर्च छु तोय तो दूध कूता छु दिवा 10 to 12 kgs 10 to 12 kgs सो छु मगर तत क्या रेट छ मिला रेट छ सर काम तो 40 rupees 40 जो तो ठीक मैं यहाँ पे एक नया फार्म खुला है छदन के पास तो उनको 34 रुपीस देते केजी उनको पर केजी 34 देते तो अच्छो तो सो दिवान 2 ना सो दिवान तो 4,000 रुपये कमाए सर इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि कुछ और सीखे और कुछ अगर करें आपको लग रहा है आइडिया चोर अच्छो सो आप और Yes, खरीदना yes, sir. चाहेंगे ना उसे और करना चाहेंगे आप एडिशन मतलब एक गाय आपको कम से कम 4-5 हजार का फायदा दे रही दे है रही है तो 12,000 वो महीने का कमा के दे रही है आपको फीडस पर छूता के साथ 7-7.5 खर्च दिन गो प्रॉफिटेबल है यानी वंश- शी कैन थिंक कि और एक हम जी। खरीदें हाँ, और इसको एडिशन कर सके हाँ right. जी तो तम पत गो वस या वत्सर लास्टस गो अस बट यही बात वासु त वुष्णु अच मेहनत पेवा वारिया करिन सर मेहनत छ मगर फायदे ती छ मतलब अकिस लेडी खतर छ वारिया आसान बिल्कुल। ये नेबर नेर को छ बेटर कि अगर कारस में सका एग्जैक्टली नेबर नेरनु मतलब छ ये है कि अच्छे रिसोर्सेज ये मगर अच्छे तम एक्सप्लोर कर हमने एक्सप्लोर नहीं किए That's why these trainings were meant for those एग्जैक्टली कि ये क्या क्या हो रहा है क्या क्या कर सकते कर सकते हैं तो एक लकुट मतलब तो ये कि इजा कोर छेतन तो एक पान में विंके सेतन अक लकुट कॉर्पोरेट बनाए मजाक के बगैर बना बोल रहा हूं सही बात एक छोटा सा इससे कॉर्पोरेट बना पहले सकते हमारे पास एक थी एक्सपर्ट शी इज जी। एंटरप्रेन्योर वो भी थे तो उनका है कि अपना डेयरी उनका यूनिट नहीं है बट शी गेट्स मिल्क शी परचेज मिल्क जी आउटसाइड 2-2.5 क्विंटल उसने कहा 2.5 क्विंटल पर डे वो लेती है शी मेक्स द प्रोडक्ट्स तो सिर्फ जी। प्रोडक्ट बनाती है तो दैट इज आल्सो एक ना दिस इज दैट वे भी ये कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं मतलब वन होता है I run a lot मतलब switches by मुझे I have not taken a single penny from this venture right till now मैं वापस reinvest करूँ मैं चुन ये मूजूब पन finances या कहाँ चीज़ या मस एम मूजूब होम because I wanted to मतलब actually interact with you people मतलब वो सी ऐसा मुझे कि either you are passionate about it कि बस आप आए हो कि हमें ये करना है कि कुछ पैसे मिलेंगे कुछ पैसे कमा सकते हैं देखेंगे I just wanted to see कि तू शू passionate about it or not मतलब वह होता है मैंने last year we made a turnover of 27 lakh in 1 year and that was our first year so that is the thing bosses नहीं ऐसा monetary चीज यथ मज़ आने I just wanted to see whether you have a good intention or not अगर आपका intention साफ है ना there is nothing that is going to stop you so any further questions so